Once again, welcome back to my show. The man that I'm about to introduce, this is my third meeting with him. पहली बार जब मैं उनसे मिला था तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मैं इनसे बार-बार मिलूंगा. This is the third time that I'm going to see him. And I'm very sure कि जो friendship, जो bond हमारा कायम हुआ है, वो कम से कम उस वक्त तक रहेगा जब तक मैं रहूंगा. रही इसकी बात कि कौन है और क्या करते हैं, तो very simple thing. He's a teacher and he teaches. ये जब बोलते हैं तो बहुत सारे वो सवालात जो हम पूछना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उनके जवाबात मिलने लगते हैं. और जिंदगी में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक होती है, सवाल पूछा जाए और सवाल का जवाब हासिल कर लिया जाए. And he exactly does that. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the ever wonderful Mr. Zaid Ahmed. I know इसके बाद शो बहुत संजीदा हो जाएगा, but right now हमको एक तो warm welcome देनी है साहिल लोधी शो वाली. 1, 2, 3, here we go, Mr. Zaid Ahmed. Thank you for that musical score. बहुत बहुत शुक्रिया. Assalamu alaikum Zaid sahab. You're welcome. Walaikum salam. See how many people love you, and how much do they love you. See, these celebrations, I would rather like to have those when we regain the glory that we've lost. Inshallah. When we hear Radio Pakistan Delhi, Yeah. would you be there then? I think I'll be. We'll all be. Yeah. Inshallah. Inshallah. We'll Let's all see. be. सबसे पहले तो once again many thanks for being here on the show. और आज भी टोपी तो वही है. I'm also the same. You're also the same. You're always the same, isn't it? Yes. Passions don't let you change, isn't it? There's hardly any time for anything else anymore. जब आपकी जिंदगी का पैशन, आपका प्रोफेशन, आपका मिशन एक हो जाए, I think you become the luckiest man on earth, isn't it? It is definitely it is. और हमारा पैशन ये है, ये बच्चे, ये पाकिस्तान. I don't want any other life other than the life I'm leading now. I think it's good. It's a passionate life. It's an emotional life. It's a life which sees dreams, and there you decide that we are going to go and grab those dreams into reality. Romantic idealism maybe, but that's how mad people are made of. So how romantic are you? By God, very. Very romantic. Because it's not possible for somebody who is not romantic to dream. Only dreamers are very romantic people, because they dream not just about their worldly glamour. No, that's not the dreams they see. They see the dreams of creating a nation. They see the dreams of carving out destinies of civilizations. They see the dream of raising the flag to the highest of pedestals on this earth. And they see the dreams of touching the skies and bringing down the stars. You think they're not romantic people? They're very romantic people. Yeah.
यानी हमें जो आज़ादी मिली है वो उन्हीं पैशनेट लोगों की वजह से मिली है। वो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने ये तहैया कर लिया था कि वो एक ख्वाब है, उसको पूरा करना है। अब जो देख लिया सो देख लिया, अब करना है, आगे बढ़ना है, करना है। पर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कहाँ जाएंगे हम, किस जगह जाएंगे। आई मीन एवरीवन इज सेइंग राइट नाउ, द न्यूज़, खबरें ये हैं कि कोयटा के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाएंगी। खबरें ये हैं कि ईरान को आलाकार बनाया जाएगा। खबरें ये हैं कि आज द डे वी आर रिकॉर्डिंग, खैबर एजेंसी में अब तक की इत्तला के मुताबिक 50 लोग खुदकुश हमले का शिकार हुए हैं। ये ज्यादा भी तादाद हो सकती है, मुझे नहीं पता जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो उसकी तादाद कितनी होगी, लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 50 लोगों की तादाद है। आज बराक ओबामा सपोज टू अनाउंस द न्यूएस्ट पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और ऑफ कोर्स ईरान और हिंदुस्तान से मदद चाहिए जाएगी। Where all this is leading to? What is the problem? No, I'm just asking. We just get our act together and then we decide our own destiny and we achieve it. उनका तो काम है ये करना जो वो कर रहे हैं, वो तो करेंगे। उनका काम है, ये किस तरह आपने assume कर लिया कि enemy will not do for which they are born. What is the destiny? They'll do that. They have been created, crafted, designed to do this work. कि पाकिस्तान को तोड़ना भी है, तबाह भी करना है, आपको इंसर्कल भी करेंगे, आपकी तकदीर और तारीख भी तब्दील करेंगे। ये अजली अब्दी कॉन्फ्लिक्ट है जो चल रहा है। लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम उनसे नहीं है। हमें प्रॉब्लम इस वक्त होती है कि जब हम वो ड्यूटी नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। Thank you. Thank you. They are not a threat to us. Our incompetence and our corruption and our dishonesty and our lack of moral courage is problem for us. They are never a problem for us. Let's talk about the moral courage. हमारे यहाँ जब मॉरल्स को पहचाना ही नहीं जाता तो करेज आएगी कहां से? हमारे यहाँ के जो मॉरल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। एंड दैट्स अ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू लव इकबाल, आई लव इकबाल, वी बोथ रीड हिम, वी बोथ लव हिम, वी बोथ ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। उसका फलसफा खुद ही शिकवा लिखा, खुद ही उसका जवाब दे दिया। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि एट द एंड ऑफ द शिकवा ही गोज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। वो लौह कलम किस तरह से वो जो जिगर है, वो जो शाहीन का, वो किस तरह से पैदा, किस तरह से किया जाएगा? देखो साहब, द रोमांटिसिज्म ऑफ आवर आइडियोलॉजी इज कि ये बेस करता है, पूरी हमारी आइडियोलॉजी की बुनियाद इस बात पर है कि व्हेन यू लुक एट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द आइडियल रोल मॉडल and sacrifice yourself on him, on his ideals, on his visions, on his message. अल्लाह ताला ने जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस माशरे में भेजा था कि जो जहां पे बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे वो, और जहां 40-40 साल वो फजूल बातों पर जंगे किया करते थे, वो क्या चंद दिनों के बाद एक तब्दीली रोनमा होती है कि वो लोग उसके बाद इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा बन गए। पूरी दुनिया में ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी तहजीब हमने कायम की कि उस वक्त की एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स, रोमन और पर्शियन एम्पायर्स, उनके आगे रोंदी चली गई। उन लोगों में क्या सुपर नेचुरल फोर्सेस पैदा हो गई थी कि वो एक तरफ दरियाओं में भी घोड़े डाल दिया करते थे, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया करते थे, दरिया को हुक्म देते थे कि तुम बहना बंद कर दो, वो बहना बंद कर देता था। दरिया में खत लिख के डाल दिया जाता था कि आज के बाद तुम सैलाब तुम में नहीं आएगा, तो दरिया दहल के इसके बाद सैलाब नहीं आता उसमें।